Good morning, all of you. So, bete, as we have already covered the whole of the syllabus of term 2 as well, so let us start with our revision part. So, I'm going to start the revision with chapter number 8, sources of business finance. So, this is very, very important topic, as it is a link of business studies of +1 and +2. +2 में आगे बेटे जो 2 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 के financial markets, financial management, they are directly related with this chapter. So the base should be very, very strong. So because we have already covered this chapter, so you are aware of the learning objectives, that you will be able to know about the nature and meaning of and importance of business finance. You will also be able to know about the various sources of business finance available to the corporate form of organization and its merits and limitations. Because जब आपके पास different sources होते हैं और आप उनमें से choice कर सकते हैं वो कौन सी particular source आप choose करें, वो choice करने के लिए आपको उसके merits और limitations पता होने चाहिए. So also in this chapter we will be coming to know about the international sources of finance. ठीक है. So सबसे पहले बेटे finance we know it is the life blood of any business. ठीक है. Business को start करने के लिए, business के day to day operations के लिए हमें funds की requirement रहती है. तो जो भी business की financial requirement है, we classify them into two main categories. One, fixed capital requirement, and another is working capital requirement. So fixed capital requirement. Whenever we need to start a business, we need to purchase fixed assets like plant, machinery, building, furniture. Okay. So the funds required to purchase these fixed assets is referred to as fixed capital requirement of the business. Okay. So the funds in fixed asset, they remain invested in the business for a long period of time. जो fixed assets के funds होते हैं, fixed assets use करने के लिए जो हम funds लेते हैं, वो business में long time तक invested रहते हैं. अब fixed capital requirement business की कितनी है? That depends upon various factors. On what factors does it depend? There are two business A and B. ठीक है? So both have different fixed capital requirement. A firm को 40 लाख रुपए की जरूरत है, B firm को 1 करोड़ fixed capital की requirement है. What could be the factors on which their varying needs of fixed capital requirement depend? ऐसा क्यों है? A और B को अलग अलग fixed capital की requirement क्यों है? Can anyone tell me? ऐसे कौन से factors हैं जिसके ऊपर fixed capital की requirement depend करती है? Yes, Purav? Give one factor on which fixed capital requirement depends. No response. Anyone else? Dipanshu? मैम प्लांट एंड मशीन. नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तो ठीक है. अब किसी को प्लांट एंड मशीनरी के लिए 40 लाख की जरूरत है, किसी को 1 करोड़ की जरूरत है. तो ये वेरिंग नीड क्यों है? कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ये नीड? सब बिजनेस की फिक्स्ड रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. वो फैक्टर्स आई वांट टू नो. एनीवन? नलिन?
Okay. Nature of the business. Yes, Amit Kalra has given me one answer. Nature of the business. Nature of business मतलब आपका business trading है या manufacturing है, ठीक है? अगर तो manufacturing business में आप deal करते हैं तो in that case you would be requiring large amount of fixed capital, whereas अगर आपका trading concern है तो फिर उस केस में आपको कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? ओके, आई गॉट वन मोर आंसर इन द चैट बॉक्स विच इज साइज ऑफ बिजनेस. यस, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, whereas if you're working on small scale then fixed capital requirement will be less. Okay. Amish has also given me one answer. Technique of production. True. बेटे अगर आप अपने बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यू आर मेकिंग मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर, इन दैट केस you will be requiring more fixed capital. On the other hand, अगर आपका business labor intensive techniques का इस्तेमाल कर रहा है, then you will be requiring less amount of fixed capital. Okay, ठीक है? और इसके अलावा और कोई फैक्टर्स? ठीक है, चलो ये 3 फैक्टर्स आपने डिस्कस किए. वेरी गुड. फर्स्ट वन वाज nature of the business, that is trading concern or a manufacturing concern. Second, scale of business, large scale or small scale. And third one is technique of production. ठीक है? So coming to the next capital requirement, which is working capital requirement. अब बेटे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फिक्स्ड एसेट्स लेके खत्म नहीं हो जाती. आप सोचो, चलो जी 1 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, लैंड खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, ठीक है, चलो अब बिजनेस अपने आप, अब हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ी. इट इज नॉट सो बेटे. बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको रन करने के लिए, उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है. ये जो रिक्वायरमेंट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पड़ती है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है? सो दिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल, and for meeting current expenses like salaries, wages, taxes, rent. ठीक है? आप इमेजिन करो, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, बिजनेस आपका प्रोडक्शन चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ठीक है? तो सपोज करो महीने की 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो आपको उस टाइम पे बेटे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा जो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. आपको अपने वर्कर की वेजेस, क्योंकि महीना खत्म हो गया है, अब वर्कर को आपको वेजेस देनी है, ठीक है, वो भी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी. इसके अलावा रॉ मटेरियल आपका खत्म हो गया है, तो आपने सप्लायर को फोन किया कि भी रॉ मटेरियल भिजवा दो, उसको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे. आपकी बिल्डिंग अगर रेंट पे है तो यू विल हैव टू पे रेंट एज वेल, आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे. ठीक है? सो ये सारा खर्चा जो है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. नाउ अगेन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल which is required by the business, it varies from one business concern to another business concern depending upon various factors. Now अब मेरे को बता सकते हो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है? आर्यन, उर्वी, factors on which working capital requirement of the business enterprise depends.
ईशा, तो बेटे पहले तो जैसे वही फिक्स्ड कैपिटल वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस मींस अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा चाहिए, ठीक है। सेकेंडली स्केल ऑफ द बिजनेस, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम पे कर रहे हैं तो कम चाहिए, ठीक है। देन वन मोर आंसर फ्रॉम अ चाइल्ड, ईशा, सेल्स। तो बेटे सेल्स का मतलब क्या, अगर आपकी सेल्स टर्नओवर स्लो है, स्लो सेल्स टर्नओवर का मतलब क्या है कि अगर आपकी जैसे आज प्रोडक्शन हुई और 8 महीने तक वो खत्म होती है, मतलब सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो इसका मतलब गैप बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं स्लो सेल्स टर्नओवर। धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो इस केस में क्योंकि धीरे धीरे बिक रहे हैं तो आपको इससे रेवेन्यू जो है वो लेट आएगा। तो रेवेन्यू लेट आएगा लेकिन इन बिटवीन खर्चा तो चलाना है ना आपको, उसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। So in case of slow sales turnover, more working capital is required. Whereas in case of rapid sales turnover, फटाफट सेल हो रही है, चीजें आ रही है, प्रोड्यूस हुई बिक गई, तो उस केस में आपका रेवेन्यू जल्दी जनरेट हो जाएगा। तो इन दैट केस बेटे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ठीक है। अगर आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो तो उस केस में क्या होगा, जब आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो बेटे तो उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, isn't it? एज कंपेयर टू अगर आप कैश सेल करते हो, कैश पे सेल करते हो तो आपका रेवेन्यू इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा, उसको यूज करके आप अपने एक्सपेंसेस पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हो तो उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। एंड बेटे एज द बिजनेस ग्रोज एंड एक्सपैंड, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो मतलब यह है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको एक बारी बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद फंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। टाइम टू टाइम you need funds to buy fixed assets, you need funds to meet day-to-day operations, you need funds to expand your business, you need funds to upgrade your technology, ठीक है। एंड समटाइम्स जैसे फेस्टिवल सीजन आता है तो इन्वेंट्रीज को बिल्डअप करने के लिए भी आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई बारी आपको अपना बिजनेस की लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है, कई बारी कुछ और नई ब्रांच खोलनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फंड्स की जरूरत हमेशा ही रहती है। Anyone having any doubt till this? Okay, so let us classify or let us see what are the various sources of finance available to us and how do we classify them. बेटे अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप कंसर्न, तो ऐसे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें हम फंड्स या तो बैंक से ले सकते हैं
या फ्रेंड से ले सकते हैं, या कोई भी हमारे पर्सनल सोर्सेज होते हैं उनसे ले सकते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर जो है अगर उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो पर्सनल सोर्सेज से ले सकता है। जैसे कि पर्सनल सोर्सेज कोई भी उसकी अपनी उसने सेविंग्स करके रखी हुई है, एफडी करा के रखी हुई है, या उसके पेरेंट्स पैसा लगा सकते हैं, ये पर्सनल सोर्सेज हो गए। और अगर उससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो वो बैंक से बोरो कर सकता है, या फ्रेंड से भी ले सकता है, रिलेटिव से भी ले सकता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। अब ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इनको हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। There are different criteria on the basis of which we can classify these sources of funds. First is on the basis of period. Second is on the basis of ownership. And third is on the basis of source of generation. We have one classification that is on the basis of ownership. So just go through this. इस चार्ट को स्टडी करिए. Take 2 minutes to study this chart. So बेटे, on the basis of ownership, we divide the different sources of funds into 2 categories: owners funds, borrowed funds. So as it is clear from the name, owners funds are those which are provided by the owner of the enterprise. चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कंपनी का शेयर होल्डर हो. ठीक है, ये सब अपनी अपनी फर्म के ओनर हैं. तो अगर ये अपने फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको कहा जाता है ओनर्स फंड्स. ठीक है, तो ओनर्स फंड में एक तो बेटे आती है अपनी कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी आती है जो आप प्रॉफिट्स उसमें री इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, सो ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटे. टुडे यू सो ओनर्स फंड्स में एक तो होता है जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट की है. ठीक है, दूसरा जो उसने प्रॉफिट्स अपने री इन्वेस्ट किए हैं वो भी ओनर्स फंड्स होते हैं. अब ओनर फंड का फीचर क्या है बेटे? ओनर्स फंड्स दे रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दे नीड नॉट बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टेड रहते हैं. इसको वापस नहीं, ये ओनर को वापस नहीं मिलती. बिजनेस ने ये ओनर को रीपे नहीं करनी, रिफंड नहीं करनी. जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगी. ठीक है, नाउ सच कैपिटल इट फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच द ओनर्स एक्वायर द राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. इसी बेसिस पर ओनर को मैनेजमेंट का राइट मिलता है, कंट्रोल का राइट मिलता है. यानी जहां पर आपकी अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड है वहां पर ही आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो. कंट्रोल उसी के हाथों में होता है जिसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है. ठीक है, सो देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड्स. वन इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अनदर इज रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, ओनर फंड 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इज रिटेन्ड अर्निंग्स. दूसरी कैटेगरी आती है बोरोड फंड्स की. बोरोड फंड्स वो फंड्स जिसको हम बोरोइंग से रेज कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो कहाँ कहाँ से हम फंड्स को बोरो कर सकते हैं? हम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, हम डिबेंचर्स से फंड्स रेज कर सकते हैं, हम पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, और हम ट्रेड क्रेडिट से भी फंड्स ले सकते हैं. ठीक है, अब ये जो सोर्स है बोरोड फंड का
बेटे इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, एंड इट हैज टू बी पेड बैक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जब हम फंड्स बोरो करते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। और जनरली बोरोइंग्स जो होती हैं, बोरोड फंड्स जो होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। So that's all for today. Rest we will do tomorrow, and you have to give your test today of the chapter internal trade.